Welcome back, my dear friends. Today we are going to discuss part 2 of voluntary liquidation. जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। आज हम लोग इसके आगे के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लास्ट क्लास में मैं आपको शॉर्ट में समराइज करा दूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था वॉलंटरी लिक्विडेशन का प्रोसेस क्या है, और वॉलंटरी लिक्विडेशन स्टार्ट कैसे होता है, वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, वॉलंटरी लिक्विडेशन की टाइमलाइंस क्या हैं, वॉलंटरी लिक्विडेशन में अकाउंट्स जो बीएल का अकाउंट खुलता है वॉलंटरी लिक्विडेशन बाय द नेम ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, वो मैंने आपको बताया था। और अगर आपको और भी कोई मतलब सपोज सम ऑफ यू आर नॉट एबल टू अवेयर अबाउट माई पार्ट 1, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में सी एस शिवम चौहान में जाके सर्च कर सकते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन पार्ट 1। ओके, सो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर की। एज पर सेक्शन 35 ऑफ द कोड फॉलोइंग आर द पावर्स ऑफ लिक्विडेटर। सो some of the powers are given as below: to verify claims of all the creditor, जो क्रेडिटर्स होते हैं उन क्लेम्स को वेरीफाई करना भी लिक्विडेटर की ड्यूटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेकेंड वन इज टू टेक इनटू कस्टडी और कंट्रोल ऑफ ऑल दी एसेट्स, प्रॉपर्टी, इफेक्ट्स एंड एक्शनेबल क्लेम्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स। कॉर्पोरेट डेटर्स के सारे एसेट्स, लायबिलिटी, एसेट्स, प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम्स और लायबिलिटी, एक्शनेबल क्लेम्स और प्रॉपर्टी सभी का टेक ओवर और सभी की कस्टडी करना, कस्टडी में लेना भी इज अ ड्यूटी ऑफ लिक्विडेटर। टू इवेल्युएट द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन द नेम as may be specified. Also, the evaluation of the assets and properties of the corporate debtor is also the one of the duty and power of the liquidator. ओके, एंड ऑल्सो प्रिपेयर ए रिपोर्ट एज वेल। रिपोर्ट भी बनानी होती है वारंटी लिक्विडेटर को विद द डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज टू टेक measures to protect and preserve the assets and properties of the CD. It is also the fourth responsibilities and duty of the voluntary liquidator to protect and preserve the assets and properties of the corporate debtor. जो corporate debtors की assets हैं उनको preserve करना, protect करना is also the duty of liquidator. Okay, and the last one is to carry on the business of the CD for its beneficial liquidation as he considers necessary. To carry on the business for beneficial liquidation भी एक पावर और ड्यूटी होती है लिक्विडेटर की। wherever liquidator try to make the operations of corporate debtor as a going concern in the beneficial interest of liquidation process. So let's be have to move upon the next slide. Some powers are also given in this slide as well. Subject to section 52, to sell the immovable and movable property and actionable claims of the CD in liquidation by public auction or private contract, with power to transfer such property to any person or body corporate, or to sell the same in partial in such manner as may be specified, subject to eligibility under section 29A. To draw, accept, make and endorse any negotiable instrument including will of exchange, hundi or promissory note in the name and or behalf of the CD. Also, it is a duty of the liquidator to draw or accept or make or endorse any negotiable instrument in the name or for the in the name and on the behalf of the CD of the corporate debtor. And also, liquidator is free to obtain any professional assistance from any person or appoint any professional in discharge of his duties, obligations and responsibilities, okay, while performing the voluntary liquidation process. So some more powers and duties of liquidator are also reflected in this slide as well. To institute or defend any suit, prosecution or other legal proceeding, civil or criminal, in the name of on behalf of the corporate debtor. Liquidator uh, can also be just to investigate the financial affairs of a CD to determine undervalued or preferential transaction. Liquidator has also powers to investigate the financial affairs of the CD कि whether कंपनी में कोई PUFE ट्रांजेक्शन हुई है, प्रेफरेंशियल, अंडर वैल्यूड, fraudulent and extortionate transaction are there or not.
to take all such steps, actions, or to sign, execute, and verify any paper, deed, receipt, document, application, petition, affidavit, bond, or instrument as may be necessary for liquidation, distribution of assets, and in discharge of his duties and obligations and functions as liquidator. I think this point is also clear to all of you. To apply to the AA for such orders or discretions for the liquidation of the corporate debtor, and to report the progress of the liquidation process. In case, suppose in case while liquidator faces of some type of issues, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ problem आ रही है, तो liquidator has also the power to make an appeal, to make an application before AA for the appropriate directions or for appropriate orders as well. Okay, and also it is the duty of liquidator to report the working and to report the progress of the liquidation to AA. AA here means the National Company Law Tribunal, NCLT. Okay, and now the topic is liquidation estate. As per section 36 subsection 1 of the code, for the purpose of liquidation, the liquidator shall form an estate of the assets mentioned in section 35 subsection 3, which will be called the liquidation estate in relation to the CD. The liquidation shall hold the liquidation estate as a fiduciary for the benefit of all the creditors. The liquidation estate shall include. अब मैं आपको बताऊं, एज पर सेक्शन 36 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द कोड, दी लिक्विडेटर को सारे ही एसेट्स की एक लिस्ट बनानी पड़ती है, एंड दैट एसेट्स comprise in combined can be known as liquidation estate. जो भी एसेट्स होते हैं वो सारे ही उनको कंबाइंड फॉर्म में लिक्विडेशन एसेट्स लिक्विडेशन estate बोला जाता है. Okay, and the liquidator shall hold the liquidation estate as a fiduciary for the benefit of all the creditors, and liquidator shall hold those assets in a fiduciary relationship on a trust basis. And the liquidation estate shall include any assets over which the corporate debtor has ownership right. अब लिक्विडेशन estate में कौन कौन से assets आएंगे? वो assets आएंगे जिन पे कि corporate debtor की ownership rights है. Assets that may or may not be in possession of the CD, including but not limited to encumbered assets, tangible assets, whether movable or immovable, or intangible assets. Okay. And liquidation estate also comprises of those assets subject to the determination of ownership by the court. Any assets or their value recovered through proceedings for avoidance of transaction, any assets of which a secured creditor has linkage right, any other property belonging to or vested in the CD at the insolvency commencement date, and all proceeds of liquidation as and when realized. The following shall not be included in the liquidation estate. अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन कौन से एसेट लिक्विडेशन एसेट का पार्ट नहीं होंगे? एसेट्स ओन्ड बाय अ थर्ड पार्टी इन पोजीशन ऑफ द सीडी. एसेट वो एसेट्स जो थर्ड पार्टी के द्वारा ओन्ड है बट पोजीशन है उनका सीडी के पास. ड्यू टू एनी workman or employee from the PF, pension and the gratuity funds, other contractual arrangement which do not stipulate transfer of title, assets held as security to collateral and subject to netting on multilateral trading, such other assets as may be specified by the central government. Personal assets of Indian and foreign subsidiary, and any other assets as may be specified by the board. अब एसेट्स कौन कौन से लिक्विडेशन एसेट्स का पार्ट, लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट नहीं होंगे? फर्स्ट, एसेट्स जो कि थर्ड पार्टी के द्वारा पोजीशन में लिए गए हों, थर्ड पार्टी ओन करती हो बट उनका पोजीशन सीडी के पास में हो, वो नहीं होंगे. किसी भी वर्कमैन और एम्प्लॉय का कोई ड्यू बनता हो फ्रॉम द पीएफ, वो भी नहीं होगा. पेंशन एंड द ग्रेचुटी फंड, वो भी नहीं पार्ट होगा. अदर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट ऑल्सो नॉट द पार्ट विच डू नॉट स्टिपुलेट ट्रांसफर ऑफ टाइटल. assets held as security collateral subject to the netting on multilateral trading, जहाँ पे such other assets as may be, और वह assets जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड कर रखे हो वो भी नहीं पार्ट होंगे. पर्सनल एसेट्स भी नहीं होंगे. एसेट्स ऑफ इंडियन फॉरेन सब्सिडरी एंड एनी अदर एसेट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, वो एसेट्स भी लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट नहीं. Power of liquidator to access information. As per section 37 of the code, the liquidator shall have the power to access any information from the following sources.
एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। अब एज पर सेक्शन 37 क्या बोलता है कि लिक्विडेटर कैसे एक्सेस कर सकता है पावर्स, कैसे एक्सेस कर सकता है इन्फॉर्मेशन का, अगर उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, देन थ्रू दीज सोर्सेज विच इज गिवन बिलो, लिक्विडेटर जो है, वोलेटिल लिक्विडेटर जो है वो एक्सेस वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एन इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी एज ऑफ नाउ इंडिया में सिर्फ एक ही है, NESL, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज भी मैंने बोल सकते हैं, जैसे इक्विफैक्स, सिबिल, एक्सपीरियन, क्रेसिल, दीज ऑल आर क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसीज, यहाँ से भी जानकारी ली जा सकती है। एंड एनी एजेंसी ऑफ द सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, कोई और अदर ऐसी एजेंसी भी सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की, वहाँ से भी एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन वॉलंटरी लिक्विडेटर ले सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर फाइनेंशियल एंड फॉर नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कंपनी के खुद के होते हैं, कॉर्पोरेट डेटर के खुद के ही बनाए हुए होते हैं, जिसमें कि MIS भी बोल सकते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की भी मदद ली जा सकती है। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एसेट्स पोस्टेड एज सिक्योरिटी इंटरेस्ट रेगुलेटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एनी डेटाबेस। And the third one is any database maintained by the board and any other source as may be specified by the board. इन दो सोर्सेज जो ऊपर डिस्क्राइब किए गए, इसके अलावा भी और भी एनी डाटाबेस विच इज मेंटेन्ड बाय द बोर्ड, बोर्ड यहाँ पे है IBBI ने कोई डेटाबेस सपोज मेंटेन किया है, उस डेटाबेस से भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं वॉलंटरी लिक्विडेटर। ओके, और अदर सोर्सेज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, और कोई भी सोर्सेज जो स्पेसिफाइड किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन कोलेक्ट की जा सकती है। सेक्शन 37 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? द क्रेडिटर्स may require the liquidator to provide them any financial information relating to the creditors may require the liquidator to provide them any financial information related to the CD, and such information to be given within 7 days. सेक्शन 37 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि एनी इंफॉर्मेशन जो कि कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज़ इन द हैंड्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, अगर उनके पास में है, बैंक्स के पास में है, तो उनसे भी वॉलंटरी लिक्विडेटर इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है, और विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ आस्किंग द इंफॉर्मेशन, क्रेडिटर्स हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू वॉलंटरी लिक्विडेटर। अब बात करते हैं पब्लिक अनाउंसमेंट की। सेक्शन 14 बोलता है कि द लिक्विडेटर शैल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट इन फॉर्म ए ऑफ शेड्यूल 1 within 5 days from his appointment. Within 5 days from his appointment, the liquidator shall make a public announcement in Form A. Form A एक specific format है जिसके के अकॉर्डिंग पब्लिक अनाउंसमेंट दिया जाएगा। The public announcement shall call upon stakeholder, उसमें होंगे क्या क्या? उसमें होगा call upon stakeholder to submit their claim as on the liquidation commencement date, provide the last date for submission of claim which shall be 30 days from the LCD। ठीक है, CRP में 14 डेज है, यहाँ पे 30 डेज है, 30 डेज के अंदर अंदर उनको अपने क्लेम सबमिट करने होंगे। जो भी बोलते हैं कि हमारा क्लेम है, हमारा स्टेक होल्डर्स भी बोल सकते हैं ना, उन्हें क्लेम सबमिट करना पड़ेगा। अब जो है कि पब्लिक अनाउंसमेंट होगा किस किस में? सेकंड क्वेश्चन, दी पब्लिक अनाउंसमेंट शैल बी मेड इन 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 1 रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर with wide circulation at the location of the registered office and principal office, if any, of the corporate person, and any other location where, in the opinion of the liquidator, the corporate person conduct material business operations on the website. Third, on the website, if any of the corporate person, and on the website, if any designated by the board for this purpose. अब तीन जगह पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाएगा। वन इज इन लिक्विड इंग्लिश न्यूज़पेपर, सेकंड वन इज इन उन जहाँ पे जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा CD का, उस सपोज इंदौर में है रजिस्टर्ड ऑफिस, तो इंदौर की रीजनल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। तो हिंदी जहाँ पे भी उस इंदौर में जो वाइड सर्कुलेशन का हिंदी लैंग्वेज का पेपर होगा, वहाँ पे उस हिंदी लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में भी हमको पब्लिश कराना पड़ेगा पब्लिक अनाउंसमेंट। 2 हो गया। थर्ड वन इज कॉर्पोरेट डेटर की वेबसाइट पे भी, अगर कोई है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फोर्थ वन इज कि IBBI की वेबसाइट पे भी, इफ एनी, अगर IBBI ने डेजिग्नेट किया है,
वैसे कि हम लोग करते हैं, IBBI को करते हैं। अब क्लेम वेरिफिकेशन। क्लेम वेरिफिकेशन, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स अदर देन वर्कमैन एंड एम्प्लॉय शैल सबमिट claim in form B of schedule 1 regulation 16। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स अदर देन वर्कमैन, सभी जितने भी हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, वर्कमैन, एम्प्लॉय, स्टैट्यूटरी, उनके सबके अलग अलग है, ठीक है। तो सभी का अलग अलग फॉर्मेट होता है। फॉर्म बी में कौन करता है सबमिट? Operational creditors other than workmen and employees shall submit claim in Form B of the Schedule 1। A person claiming to be financial creditor किस में करते हैं? Form C में करते हैं, ठीक। Submit the proof of claim to the liquidator in electronic means in Form C of Schedule। A person claiming to be a workman or an employee of the corporate person shall submit proof of claim to the liquidator in person by post or by electronic means in Form D of Schedule 1, Schedule D, sorry, Form D of Schedule 1। तो फॉर्म बी में करते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर, फॉर्म सी में करते हैं, फॉर्म बी में करते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर अदर देन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज, फॉर्म सी में करते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर, फॉर्म डी में करते हैं वर्कमैन और एम्प्लॉयज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। And person claiming to be a stakeholder other than those under regulation 16, 18, 17 and 18 shall submit proof of claim to the liquidator in person by post or by electronic mean in Form F। और जो भी पर्सन जो अंडर 16, 17 और 18 में कवर नहीं हुआ है रेगुलेशन में, वो भी सबमिट क्लेम कर सकता है अपना इन फॉर्म F। ओके। The liquidator shall verify all the claims within 30 days of the last date of receipt of claim। 30 डेज में लिक्विडेटर की ड्यूटी है कि वो उन क्लेम्स को वेरीफाई करे। सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड अदर इश्यूज एज पर रेगुलेशन 20 of IBBI voluntary liquidation regulation 2016, the existence of the security interest may be proved by a secured creditor on the basis of the records available in an information utility। अब सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या होता है? जैसे सपोज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनका कि उस पर्टिकुलर एसेट्स पे चार्ज है, उनको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोलते हैं। और ये चार्ज हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट है कि नहीं है, वो पता चलेगा विद द इंफॉर्मेशन with the records available in an information utility। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जब भी कोई भी कंपनी लोन लेती है, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर टू रिपोर्ट इट विद MCM, विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। चार्ज 1 CHG 1 फॉर्म फाइल करना होता है, उससे चार्ज की पता चल जाता है। तो आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, वहाँ से भी इंफॉर्मेशन कोलेक्ट कर सकते हैं कि वेदर पर्टिकुलर चार्ज पर्टिकुलर एसेट्स पे मतलब सिक्योरिटी इंटरेस्ट है बैंक का कि नहीं है, ऐसे करके। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज विद द सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन, SRSI जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, यहाँ से भी पता किया जा सकता है। अब लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर कैसे? स्टेक होल्डर की जो लिस्ट होती है, द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, द लिक्विडेटर शैल प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर विद इन 45 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ्स ऑफ क्लेम सबमिटेड एंड एक्सेप्टेड। अब जैसा कि अभी जस्ट डिस्कस किया मैंने कि विद इन 30 days फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ क्लेम वेरीफाई करने होते हैं, और 45 दिन में फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ क्लेम लिक्विडेटर को लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स बनानी होती है। तो हम बोल सकते हैं कि क्लेम को वेरीफाई करने के 15 दिन के बाद, है ना, लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर बनानी पड़ेगी लिक्विडेटर को। The list of stakeholders as modified from time to time shall be available for inspection by the person who submitted proof of claim। List of stakeholder available रहनी चाहिए for inspection by the person who submitted proof of claim, available for inspection by members, partner, directors and guarantors of the corporate person। लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर डिस्प्लेड होनी चाहिए ऑन वेबसाइट इफ एनी ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन, डिस्प्लेड होनी चाहिए ऑन द वेबसाइट इफ एनी ऑफ द बोर्ड। IBBI की वेबसाइट पे भी होना चाहिए डिस्प्ले लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर को, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है विच कंप्राइजेज कि इस कंपनी में किस किस का स्टेक है, कौन कौन स्टेक होल्डर है, कौन कौन से क्रेडिटर हैं, वो सब इसी से पता चलता है। सो रजिस्टर एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
most important documents which are needs to be maintained by the liquidator. अगर suppose ये नहीं है तो it creates a chance कि misappropriation of funds हुआ है. So as per regulation 10 sub regulation 2 of IBPI voluntary liquidation regulation 2016, the liquidator shall maintain the following registers and books as may be applicable in relation to the liquidation of the corporate debtor. First of all, cash book, ledger, bank ledger, register of fixed assets and inventories, securities and investment registers, registers of books debt and outstanding debt, टीनेंट्स लेजर, तो कैश बुक में कैश की एंट्रीज होंगी, लेजर में सारे पर्टिकुलर अकाउंट्स की होंगी, बैंक लेजर में बैंक में पर्टिकुलर क्या ट्रांजेक्शन हुई उनकी डिटेल होगी, रजिस्टर ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेंट्रीज में फिक्स एसेट्स हमारे कंपनी के पास क्या है उनकी एंट्री होगी, स्टॉक इन ट्रेड वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिक्स फिनिश्ड गुड्स कितना है, एफजी कितना है, डब्ल्यूआईपी कितना है, रॉ मटेरियल कितना, उसकी डिटेल होगी। सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट रजिस्टर्स में डिटेल होगी कि कंपनी की क्या कहाँ इन्वेस्टमेंट है, कहाँ सिक्योरिटीज़ हैं। रजिस्टर ऑफ बुक डेट एंड आउटस्टैंडिंग डेट क्लियरली शोज अबाउट द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, कंपनी के ऊपर कितना लोन है और कितना डेट है। टीनेंट लेजर की कंपनी ने कहाँ कहाँ पे लीज पे अपनी प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, है ना। तो आई थिंक वी हैव टू बाइंड अप द क्लास। ओके, सो आज पार्ट 2 हम लोग वाइंड अप करते हैं एंड इन अपकमिंग यूट्यूब क्लास आपको पार्ट 3 मैं नेक्स्ट वारंटी लिक्विडेशन में क्या और फर्दर प्रोसेसेस होते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। एंड जस्ट वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल and also share it with our friend for better understanding in warranty liquidation in IBC and various other topic। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे अपनी इंफॉर्मेशन मुझसे चाहिए, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रिपेयर वीडियोज ऑन सच टॉपिक्स एज वेल। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। My name is the name of my YouTube channel is CS Shivam Chauhan। Thank you so much all of you for sparing your valuable time। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। Thank you so much।